السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے رام گیری کے خلاف FIR درج ہونے کے باوجود سندھ حکومت نے اسے حراست میں نہیں لیا۔ ہم نے آئینی قانون کے مطابق پرامن احتجاج جاری رکھا۔ پولیس نے اوکار موجے 168 کا نوٹس حوالے کیا ہے۔ 28 اگست کو 3 بجے نوگ پاڑا جنکشن پر آئینی طریقے سے پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ مسٹر گوتم اوکلا وینکٹیشور راؤ کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین، مسٹر بنڈی رمیش گارو کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی کے انچارج اور مندر کمیٹی کے چیئرمین مسٹر ناگے ریڈی کے ساتھ شری کرشنا جنماشٹمی کی تقریبات میں کوکٹ پلی حلقے کے بھارت نگر میں سری ہری ہرا کھیترا دیوستھانم میں شرکت کی۔ مہاتما جیوتیبا پھول پرجا بھون میں منگل کو منعقدہ پرجا وانی پروگرام میں کل 578 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اقلیتی بہبود سے متعلق 118 درخواستیں، محصولات سے متعلق 94 اور محکمہ برقی سے متعلق 88، محکمہ سول سپلائی سے متعلق 48، پنچایتی راج اور دیہی ترقی کے محکمات سے متعلق 47 اور دیگر محکموں سے متعلق 192 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر چنا ریڈی نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور ان درخواستوں کو وصول کیا ہے۔ انہوں نے پرجا بھون آنے والوں کے مسائل دریافت کیے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اور شہری فراہمی اتم کمار ریڈی نے خبردار کیا ہے کہ پیمانوں کی پیمائش میں بے ضابطگی کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر EOD-BEG کے نام پر صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے BR امبیڈکر سکریٹریٹ میں وزن اور پیمائش کا محکمہ جاتی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس میں سول سپلائز اور وزن اور پیمائش محکمے کے پرنسپل سیکریٹری ریس چوہان، محکمہ زون پیمائش کے اسسٹنٹ سیکریٹری پرینکا، اسسٹنٹ کنٹرولر راجیشور اور ریاست بھر میں کام کرنے والے اسسٹنٹ کمشنرز نے اس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے افسران کو بار بار معائنہ کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے اور صارفین میں محکمہ وزن اور پیمائش کے بارے میں بیداری بڑھائی جائے۔ انہوں نے پیٹرول اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ وزنی مشینوں پر بھی نگرانی بڑھانے کی تجویز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو دھوکہ دہی سے بچایا جائے، اضلاع کا بار بار جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ زون اور پیمائش میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ میونسپل اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مچھر پر قابو پانے کے پروگرام باقاعدگی سے چلائے جائے تاکہ لوگوں کو مچھر نہ کاٹے۔ چیف سیکریٹری نے حیدرآباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں زونل کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، ماہرین حشرات اور طبی افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ زیادہ تر علاقے میں مچھروں پر قابو پانے کے پروگراموں کو نافذ کرے۔ زیادہ تر علاقے میں مچھروں پر قابو پانے کے لیے اینٹی لاروا آپریشن باقاعدگی سے کیے جائے۔ وہ بستی کے اسپتالوں اور بنیادی مراکز صحت کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور ڈینگی کیسز کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ اور ایریاز کا دورہ کر کے مچھروں سے بچاؤ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ تمام لوگوں اور اسکولوں کے طلباء کے لیے مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری کے اقدامات نہ کیے جائے۔ مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے گیمبو سیام اور مچھلی کو آبی ذخائر میں چھوڑنا چاہیے۔ تیل کی گولیاں لگائی جائے تاکہ لاروا نہ اگے۔ دھند کی سرگرمی شام کے وقت باقاعدگی سے کی جائے گی۔ جگا ریڈی نے میڈیا کانفرنس میں کہا ہے کہ کویتا کو ضمانت ملی ہے۔ کیا BRS BJP میں ضم ہو رہی ہے؟ کویتا شراب مافیا کنگ کی 5 ماہ کے لیے ضمانت منظور۔ سسودیا کو 17 ماہ تک ضمانت نہیں ملی۔ کویتا کو 5 ماہ بعد ضمانت کیسے ملی؟ تلنگانہ میں کانگریس کو BJP نے نقصان پہنچانے کی سازش کی ہے۔ رویندر بھارتی میں آج MLC عامر خان کا اعزازی پروگرام شاندار رہا۔ سابق MP وی ہنمنت راؤ نے تقریب کی صدارت کی جبکہ کانگریس کے قومی قائدین تھرک انور، ڈسک صدر روہن ریڈی، فریشرز چیئرمین میتو سائی کمار اور دیگر نے شرکت کی۔ AP میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج میں بشیر باغ میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ جب چندرا بابو نائیڈو نے پولیس کو مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا،
कुमार राव सीनियर नायब सदर, कैलाश कुमार बस्थापी सीसी जनरल सेक्रेटरी, वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर और जीएचएमसी के फ्लोर लीडर और इसके अलावा अल्लामा भास्कर पीसीसी सेक्रेटरी और दीगर ने फूलों की खराज अकीदत पेश की है। किंडोर शराइन स्कूल पेडा अंबरपेट अब्दुल्लाहपुर मीट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, जो पिछले 10 सालों से बगैर किसी फायर परमिशन के चल रहा है। लानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए तालीम बर्रार को वेंकटेशम जय भीम राव भारत की शिकायत पार्टी की जानिब से रियासती कमेटी के अराकीन और खवातीन विंग कमेटी की जानिब से दी गई है। रक्षापुरम मंदिर का मसला हुआ हल, साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी ने किया मसले को खत्म। अवाम से गुजारिश है फालतू बयानात पर तवज्जो न दे, शहर में अमन को बरकरार रखे। మీతోటి మీటింగ్ చేయడానికి కుదరలేదు, ఎందుకంటే నలుగురితో చేశాము కానీ మీ అందరితో కలవడానికి కుదరలేదు అనేది ఇప్పుడు తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చినాము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన దేవాలయం మీద జరిగినటువంటి దాడికి సంబంధించి మొత్తం రిపోర్టు, మళ్ళీ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయడానికి కానీ దేవాలయాన్ని మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ చేయడానికి కానీ అయ్యేటటువంటి విషయాలన్నింటిలో కూడా మేము ఖచ్చితంగా మీకు ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి పునర్నిర్మాణం చేయడంలో, విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయడంలో కూడా మీకు ఖచ్చితంగా సహకారం చేస్తామండి. మనం దయచేసి శాంతియుతంగా ఉండాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. जेल में ही पकड़ लिया था और जेल में भेज दिया उनको। दूसरी बात, आप लोगों ने 3 रिक्वेस्ट की थी कल कि जो भी है उनको इमीडिएटली डिमांड करो। दूसरा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पुलिस बात करेगा कि अच्छे से जो भी अपना पुनर्स्थापन का विधि का है वो हो जाएगा। मॉर्निंग में एमआरओ आए थे, बाकी एमसीएचआरडी में मीटिंग चल रहा था तो आरडीओ नहीं आए थे। आरडीओ ऑन द वे है। एमआरओ ने भी मॉर्निंग मीटिंग किया था बट वो थोड़ा सा कम लोगों के साथ मीटिंग हुआ, ज्यादा लोगों के साथ नहीं मीटिंग हुआ था। तो अगेन एमआरओ भी आए यहाँ पर। तो तीसरी बात, वो पुलिस सुरक्षा की यहाँ पर की थी सबने कि पुलिस यहाँ पर कंटिन्यू पिकेट रखेगा, तो वो भी 100% कल रात से रख दिया था मैडम हमने, कोई डाउट नहीं। और बाकी जो टेम्पल्स के लिए भी सिक्योरिटी मांगी थी वो भी पूरी सिक्योरिटी पिकेट्स की तरह आज से। एक बड़ी कामयाबी में अनंतनाग पुलिस ने फौज और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 3 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया, जिसने जिला में दहशतगर्दी को एक अहम धचका पहुंचाया था। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारियां विपिजान ट्राई जंक्शन पर मुश्तरका नाके की चेकिंग के दौरान की गई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 अफराद को हिरासत में लिया। गणेश फेस्टिवल और विसर्जन प्रोग्राम के 2024 इंतजामात पर तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स और राजेंद्र नगर गणेश उत्सव कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की, जिसमें डीसी राजेंद्र, एडीसी पी विजय कुमार, एसीपी श्रीनिवास, बालाजी, वाटर वर्कर्स, जीएम रेवेन्यू का और टीम वगैरह ने शिरकत की। అవి జరగకుండా మనం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ అంతా మమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు మీటింగ్ అరేంజ్ చేయాల్సి పోతున్నాం. మేము కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేశాము. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీకి గణేష్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి మేము సూచనలు చేస్తాం. చేయాల్సిన ఏంటి, చేయకూడదు ఏంటి, కంపల్సరీ అవి పాటించాలని చెప్పే రకంగా మేము అందరికీ మా యొక్క సూచనలు తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క రూట్స్ ఇమర్జెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫస్ట్ మనకు ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ రోడ్ మీద పెట్టకుండా ఒకటి అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది. అది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది. नबील कॉलोनी वार्ड नंबर 3 जलपल्ली की अवाम की मुश्किलात को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर एमआईएम ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके वक्फ तरमीम के ताल्लुक से बात की। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने नबील कॉलोनी, एसएनडीपी नाला वर्क और हमरा बजट और खुबा कॉलोनी में खालिद सैफुल्ला के मकान के नाले और वर्क बजट देने को कहा। वज़ीर आला ने बजट रिलीज करने का तयक़ुन दिया। एमएलसी मिर्जा रहमत बेग और एमएलए महेश्वरम सबिता इंद्रा रेड्डी और चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला बिन अहमद सैदी ने एसएनडीपी ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और डिप्टी चीफ इंजीनियर जलपल्ली को लेकर नबील कॉलोनी का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। जल्द ही नाले का काम शुरू हो जाएगा।
मैडम एक सवाल आपसे, मैडम सवाल करना है आपको क्या नहीं? ये हमारा काम है, ये मैडम का काम है। वो नहीं बोले, आप उधर से आ रहे हैं, आप भाई बोल के इसके बारे में हमारी बात रखिए। ये बंदे बच्चा है। एक ही खानदान के 3 भाई तालाब में डूबने से उनके खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के नया आबादी गांव के 3 भाई विजय, अक्षय और आकाश मजदूरी के लिए 6 दिन कबल आदिलाबाद जिला के बंडाला नागपुर गांव को आए हुए थे। आज सुबह वो कपरला गांव के एक और रिश्तेदार कंबले श्रीनिवास के साथ तफरीह के लिए आदिलाबाद यही मंडल के पोचारा तालाब पर गए। तीनों नौजवान मछलियां पकड़ने तालाब में उतरे। तैराकी से नावाकिफ होने से एक दूसरे को बचाने की कोशिश में पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से तीनों पानी में डूब गए। मुकामी लोगों से मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीडीआरएफ की टीम को इत्तला दे दी गई है। डीडीआरएफ की टीम ने मुकामी माहगीरों की मदद से तलाश का काम तेजी से शुरू कर दिया और तीनों की लाश निकाली। देही सर्कल इंस्पेक्टर फानीधर और एसआई ने कार्रवाई की करीब से निगरानी की। तेलंगाना स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन इंतखाबी मंसूबा में हुक्मरान पार्टी की तरफ से दिए गए जमानत के मुताबिक तमाम किसानों के फसली खर्च की माफी को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया है और कलेक्टर्स के सामने धरना देकर दरख्वास्त देने का मुतालबा किया। जिला कलेक्टर्स का दफ्तर इसके एक हिस्से के तौर पर हम रंगारेड्डी जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दे रहे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद रहे। हालांकि रियासत की मौजूदा माली हालत अच्छी नहीं है। 21 लाख से ज्यादा फसली कर्जे अभी माफ किए जाने हैं। रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें तमाम किसानों से कहा गया है कि वो कर्ज माफी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए। हजारों किसान मंडल ज़राअत के अफसरान से शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा सूद की अदायगी, 21 लाख से ज्यादा लोगों को कर्ज की मुआफी नहीं मिली है। हम रेगुलेशंस को उठाने और फसलों के कर्जे माफ करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा करते हैं। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर गोजा कृष्णा ने सीपीआई तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी और इसके अलावा मकसद से नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से चलाई जा रही तहरीकों की हिमायत की है। इस हद तक कुनैनी राव ने गोजा कृष्णा और नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासत कायदीन नंदा गोपाल, विमला राम कृष्णा और उदय कायदीन के साथ मंगल को हैदराबाद के हिमायत नगर में सीपीआई के रियासती दफ्तर को एक अर्जदाश सौंपी है। इस महीने की 29 तारीख को नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर और राज्यसभा के मेंबरान आर गगना कृष्णा के और इसके अलावा तमाम मुनक़द रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सीपीआई से दरख्वास्त की गई है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे और इनके मुस्तक़बिल की जदोजहद की हिमायत करे और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि बीआईबीसी के मसाइल को हल करने की तहरीकों की हमेशा हिमायत करेगी और इस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के नुमाइंदे शरीक रहे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कानून साजों की कौंसिल, सीपीआई के कौमी कायदीन और इसके अलावा सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी तिक्कलपल्ली श्रीनिवास बाला रमेश और इसके अलावा मल्लेश बीकेएमयू के कायदीन, कुंताया एआईटीयूसी कायदीन, थोटा नरसिम्हा, रामान जिनुलू और किशन और दीगर ने बशीर बागी को खराज अकीदत पेश किया है। एमएलए कुनैनी संबाशिवाराव कोटागुड़म के रियासती सेक्रेटरी एमएलए आज सीपीआई के रियासती दफ्तर हिमायत नगर मखदूम भवन में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हुकूमत हाइड्रा के मामले में एक कदम पीछे ना हटे। पहले गरीब और मुतवसत तबके के लोगों के घर गिराए जो एक पैसे से फ्लैट्स खरीद रहे हैं, उनके घर गिरा दे। बदमाशों से ना डरे और एक कदम आगे बढ़ाए। नागार्जुन के मामले में 2014 में इस मामले पर अदालती हुक्मात के बावजूद वो 10 साल से न कन्वेंशन से आने वाली आमदनी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसलिए कन्वेंशन के अलावा तमाम
बड़े लड़के जिन्होंने तामीरात का काम लिया है। बफर जोन को यकीनी तौर पर तालाब की तामीर 9 के लिए हुकूमत को हासिल होने वाली आमदनी में से कुछ अदा करने की जरूरत है। बफर जोन में किसी किस्म की तामीरात की इजाजत नहीं है। हालांकि जिन हुकाम ने उन्हें इजाजत दी है उन्हें एक तरफ को छोड़े बगैर मुकदमात जरूर दायर करने चाहिए। इस महकमे के जिम्मेदार वज़रा बसूरत दीगर ये बहुत से इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है कि कुछ बीजेपी बीआरएस के साथ शामिल होंगे और कुछ टीआरएस अपने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेगी। कविता की जमानत पर रिहाई के मामले पर यह बात की गई है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम तेलंगाना इंज़माम का एहतमाम करने का मुतालबा किया। इसी तरह 17 सितंबर को विट्टी चक्री की आज़ादी के लिए कई कम्युनिस्ट शहीदों की कुर्बानियों को निसाब में शामिल करने का मुतालबा किया है। मच्छरों के मुज़र असरात से बचाने और बेदारी लाने के लिए हर साल 20 अगस्त को आलमी यौम मच्छर मनाया जाता है। हर साल इसके लिए अलग अलग उमूर पर मलेरिया के खिलाफ तवज्जो दिलाई जाती है। इस बार इसका मकसद और मोटो था कि भी इस लड़ाई में तेजी से लाना। अगस्त की तारीख इसका काम के लिए मुकर्रर की गई है जो 1869 में इसी तारीख को डॉक्टर रोनाल्ड रास ने मादा अनाफिल्स मच्छर की खोज की थी। नाफिल्स मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। इस अहम तहकीक के लिए डॉक्टर रोनाल्ड रास को 1902 में नोबेल इनाम भी नवाजा गया था। पूरी दुनिया में मच्छरों की 4000 से ज्यादा किस्में पाई जाती है। उनमें कम से कम 2 दर्जन किस्म के मच्छर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। नर मच्छर की कुल उम्र 5 से 6 दिन होती है और ये मादा मच्छर की बनिस्बत कम मुज़र होते हैं। मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है क्योंकि इसको अंडे देने के लिए तवन्नाई की जरूरत होती है। इसकी उम्र 6 हफ्ते और इससे जायद हुआ करती है। इम्स, भ्री और गर्मी, नमी और पानी के जमाव में इसकी पैदावार तेजी से बढ़ती है। ये मलेरिया, डेंगू, जर्द बुखार, जापानी इंसेफ्लाइट्स, जीका, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसे अमराज इंसानों में मुंतकिल करते हैं। इनकी जिंदगियों के 4 अदवार होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और मच्छर। जो मच्छर इंसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इनमें किस्म काले भूरे रंग के मच्छर की होती है। उन मच्छरों के मुंह के अगले हिस्से में एक जोड़ी पतली सूंड जैसी चीज होती है। इसकी मदद से मादा मच्छर इंसानों का खून चूसती है। शाम और रात के वक्त ये ज्यादा मुतहर्रिक होती है। ये सर से पैर तक किसी जगह भी काटने की सलाहियत रखती है। फिर मच्छर के इस किस्म को इनोफिल्स कहते हैं। मच्छर की एक किस्म एड्स है जिनके पैरों पर सफेद निशान और इसके जिस्म के ऊपर हिस्से पर सफेद लकीरें होती है। ये 4 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये जिस्म के खुले आज़ा, पैर, हाथ के अगले हिस्से, पेट और कमर को भी अपना निशाना बनाते हैं। क्यूबिलिक्स मच्छर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। सफेद, चांदी, कौसे खजा और भूरे रंग के भी पाए जाते हैं। इनके 2 पंख, सर पर एक सींग जैसा एंटीना और पांव लंबे होते हैं। ये उमूमन जानों, पांव के पिछले हिस्से और गर्दन पर काटते हैं। उन 3 किस्मों के मच्छर में एनोफिल्स ज्यादा आवाज लगाते हैं। एड्स और इसकी आवाज इंतहाई कम होती है और क्यूलिक्स पूरी तरह खामोश रहकर हमला करते हैं। सिर्फ बिहार की सतह पर और उन मच्छरों के असरात का जायजा ले तो मालूम होता है कि ये हर साल 5 लाख लोगों को बीमार बनाने का सबब बनते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में तकरीबन 10,000 लोगों की मौत मच्छर काटने से हुई है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में मच्छरों की सिर्फ 300 किस्में पाई जाती है जबकि बिहार में सिर्फ मच्छरों की 9 किस्में ही मौजूद होती है। इसके बावजूद ये कहर ढा रहे। मच्छर भी अल्लाह की मखलूक है और इसके छोटे से जिस्म में अल्लाह की बड़ी निशानियां मौजूद है, लेकिन ये इंसानों के लिए जर रिसा होती है, इसलिए उनके काटने से कब्ल उन्हें खत्म करने की इजाजत है। मच्छरों के जरिए फैलने वाली महलिक और मुज़र अमराज से हिफाजत के लिए जरूरी है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को बरोकार लाया जाए। घरों और इसके आसपास गंदगी और पानी जमा ना होने दे। अपने आप को साफ रखे। मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट मच्छरदानी, मच्छरबत्ती का इस्तेमाल आम है, लेकिन अब ये इतने ढिठ हो गए हैं कि उनके असरात भी उन पर कम ही होते हैं। हालांकि मच्छरबत्ती की बिक्री में गुज़िश्ता 2 सालों में 5 गुना इजाफा हुआ है। 2 साल पहले मच्छरबत्ती की बिक्री 5 से 7 करोड़ रुपए के पूरे हिंदुस्तान में हुई थी। अब ये तिजारत 25 से 30 करोड़ तक पहुंच गई है। सिर्फ पटना नगर निगम हर साल मच्छरों को काबू में रखने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करता है। बचाव का तरीका आप जो भी इस्तेमाल करें, इतना जरूर याद रखें कि हमारी जिंदगी हमारे पास अल्लाह की अमानत है और इस अमानत की हिफाजत हम पर फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अपने आप को हलाकत में मत डालो। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता अब से कुछ ही देर कबल दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गई। जेल से रिहाई के बाद वो जेल के पास अपने अरकान खानदान, पार्टी के अरकान
कायदीन को देखकर अश्कबार हो गई। उन्होंने कहा है कि वो केसीआर की दुख्तर है और उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। कविता ने मजीद कहा है कि उन्होंने 5.5 माह जेल में गुजारे हैं। कविता ने इंतबाह देते हुए कहा है कि उन्हें और उनके अरकान खानदान को मुश्किलात से दो चार करने वालों को सूद समेत जवाब देंगी। भी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు, మనము నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను కేసీఆర్ బిడ్డను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు. నేను మొండిదాన్ని, మంచిదాన్ని, అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిని చేసిండ్రు. ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. We were always tough, we are fighters, we will fight it out legally, we will fight it out politically. We were always tough. By sending us to jail illegally, they only made BRS and KCR's team unbreakable. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।